Hello student. Now today's video lecture we discuss about the operation on binary search tree. Okay. Last video lecture we discussed the types of tree, that is a binary tree, binary search tree, as well as general tree. Okay. Now today's video lecture we discuss about the operations on binary search tree. Okay, so the various operation that can be performed on a binary search tree is nothing but searching, inserting a node, deleting a node, or as well as traversing a particular node. Okay, so first of all, here we discuss the insertion of a node into binary search tree. If you want to insert any one node, so what are the steps are required for that? This operation on binary search tree is very simple. This operation add or insert an element to BST, nothing but the binary search tree. The steps of insertion same as the creation of binary search tree. Okay, so whatever operations, whatever steps we perform already in the algorithms of the binary search tree, same types, same procedures, same steps here we also apply. Okay, so according to the diagram here we see that binary search tree before insertion, if you want to insert any one node. Okay, so here we show in two diagrams. Okay, binary search tree before insertion, and then second diagram, search find a location where the particular node, particular for example 17. Okay, 17 if you want to insert, so what the procedures are required. Okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका बाइनरी ट्री है. अगर मुझे 17 इस नोड को इंसर्ट करना है, बिकॉज हियर वी डिस्कस अबाउट द इंसर्शन ऑफ अ नोड इन द बाइनरी सर्च ट्री. ऑलरेडी वन ट्री इज क्रिएटेड एंड नाउ हियर वी सिंपली इंसर्ट अ पर्टिकुलर नोड. सो व्हाट वी डू here we do the comparison perform. Comparison means what? Just like that in the previous video lecture we already discussed about the how to particular create of the binary search tree. We see that always compare with the root node. Okay, तो जैसे हमने वहाँ पे रूट नोड के साथ कंपेयर किया था, यहाँ पे भी हम वही करेंगे. आपका रूट नोड जो है वो 10 है. ठीक है, तो हमें अगर 17 इस नोड को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हियर वी नीड टू कंपेयर विद द रूट नोड. तो हम यहाँ पे 10 के साथ कंपेयर करेंगे. लॉजिक क्या है, स्टेप्स क्या है कि अगर कोई नोड जिसको भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर वो रूट नोड से small है, then here we can say that node insert in the left side or left subtree. If any new node, if you want to insert that greater than the root node, then we insert into the right subtree, that is the right child. Okay, this is the rule, this is the procedure. Okay, so here also we compare the 17 is greater than 10, so that's why it comes into the right side, that is the right subtree. But right subtree there is a one again node. what that node already occupied the position is 30. ठीक है, राइट साइड में इंसर्ट होने के बाद, सर्च करने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी 30 ये नोड प्रेजेंट है. तो अब हम क्या करेंगे, 17 को 30 के साथ कंपेयर करेंगे. तो 17 इज लेस दैन 30 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, वो 30 के लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो जाएगा. सिंपल, जो हमने क्रिएशन के लिए लॉजिक अप्लाई किया था वो सेम लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा, कंपैरिजन होगा पहले रूट नोड के साथ. रूट नोड के साथ कंपेयर होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो लेफ्ट में इंसर्ट होता है राइट में. तो 17 ये ग्रेटर दैन 10 है, तो ऑब्वियसली वो राइट साइड में इंसर्ट होगा. राइट साइड में इंसर्ट होने के बाद ऑलरेडी वहाँ पे और एक नोड है, इज़ नथिंग बट द 30. ठीक है, तो हम 30 के साथ 17 को कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि 17 जो है ये 30 से छोटा है, स्मॉल है. सो उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में उसको हम इंसर्ट करेंगे 30 के. तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि first of all find the locations of that particular node that we want to insert, and then should be insert in the proper position. Okay, so this is simply inserting a node in a binary search tree. ठीक है, सिंपल हम रूट नोड के साथ कंपेयर करते हुए हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट में या राइट में उसको इंसर्ट करेंगे. ठीक है, जब भी कोई नोड को हम लेफ्ट में या राइट में इंसर्ट करते तो उसमें अगर ऑलरेडी कोई नोड ऑक्यूपाई है तो उसके साथ भी हमें कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ता है. इस तरह से कंपेयर कर हम पर्टिकुलर नोड को उसके प्रॉपर लोकेशन पे, प्रॉपर पोजिशन पे इंसर्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज द इंसर्शन ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री. नाउ नेक्स्ट वन इज द deletion of node from binary search tree.
ओके, इंसर्शन हो गया, सिंपली हम कंपैरिजन करके लोकेशन फाइंड करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी नोड को डिलीट करना है, इफ़ यू वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर नोड इन फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, देन व्हाट द स्टेप्स आर रिक्वायर्ड? द ऑपरेशन इज यूज टू डिलीट अ नोड फ्रॉम BST। देयर आर 3 केसेस दैट कैन अकर। तो उसके लिए 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस है इफ़ द नोड टू बी डिलीटेड एन, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एन नोड को डिलीट करना है, इज अ लीफ नोड। व्हाट डू मीन बाय लीफ नोड? लीफ नोड इज नथिंग बट द particular the terminal node. Okay, so simply make the pointer field of the parent node of n to n, pointer field of the parent node of n to null। इसका मीनिंग क्या है? जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि अगर सपोज मुझे 90 को डिलीट करना है, टर्मिनल नोड, लीफ नोड का मतलब क्या होता है? टर्मिनल नोड जिसका कोई जिसके कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस नोड को हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वो नोड जो है वो सिंगल है, ठीक है। वो हम बोल सकते हैं किसी एक नोड का चाइल्ड है, बट उसको कोई चाइल्ड नहीं है, वो किसी का पेरेंट नहीं है। तो अगर ऐसे किसी नोड को, टर्मिनल नोड को मुझे अगर डिलीट करना है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो उसको हम सिंपली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये केस है 1 है कि इफ द नोड टू बी डिलीटेड एन इज अ लीफ नोड, दैट इज टर्मिनल नोड, सिंपली मेक द पॉइंटर फील्ड ऑफ दैट पेरेंट नोड ऑफ एन टू नल। तो उसके पेरेंट नोड पे हम पॉइंट करेंगे और उसका जो चाइल्ड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम लॉजिकल व्यू में रिप्रेजेंट करते हैं तो हर एक चाइल्ड के लिए हम सेपरेट नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पेरेंट नोड का जो अगर लेफ्ट चाइल्ड अगर मुझे डिलीट करना है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं या नल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, जो हमने डायग्राम में देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ट्री सीक्वेंस पे अगर हम देखते हैं तो उसको हम सिंपली पॉइंट करेंगे जिस नोड को मुझे डिलीट करना है, ठीक है। वही बताया है कि द पॉइंटर फील्ड ऑफ द पेरेंट नोड ऑफ एन टू नल, ठीक है। तो पॉइंटर जो रहेगा किस पे पॉइंट करेगा? पेरेंट नोड को, कि उसका जो चाइल्ड है जिसको मुझे डिलीट करना है उसको हम सिंपली डिलीट कर देंगे। सो आफ्टर डिलीशन नोड 90 आप देख सकते हो कि 70 को अभी कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो वो जो लिंक होती है बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है, जिस चाइल्ड को मुझे डिलीट करना है, ठीक है, उस चाइल्ड के साथ जो लिंक होती है पेरेंट की, उसको हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं और उसको हम सेट टू नल कर देते हैं, ठीक है, एंड टर्मिनेट कर देते हैं। दिस इज सिंपल कि ऐसी नोड जिसको कोई भी चाइल्ड नहीं है और उसको अगर मुझे डिलीट करें तो हम उसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब केस 2 में क्या बताया है? इफ़ द नोड टू बी डिलीटेड एन, फॉर एग्जाम्पल मुझे नोड एन को डिलीट करना है, हैज़ अ चाइल्ड, सिंपली सेट पॉइंटर ऑफ दैट पेरेंट नोड ऑफ एन टू पॉइंट टू द ओनली चाइल्ड नोड ऑफ एन। ओके, अब देखो ये कैसे होता है कि अगर सपोज मुझे फॉर एग्जाम्पल 30 को डिलीट करना है, ठीक है, बट उसको तो चाइल्ड है, उसका चाइल्ड कितना है? 60 है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मुझे 30 नोड को डिलीट करना है तो क्या करना है? सिंपली सेट द पॉइंटर फील्ड ऑफ द पेरेंट नोड। हमको पॉइंटर फील्ड को कहाँ पे पॉइंट करना है, कहाँ पे सेंड करना है? पेरेंट नोड को। तो 30 का पेरेंट नोड कितना है? 10 है, ठीक है। पेरेंट नोड ऑफ एन टू पॉइंट ओनली चाइल्ड नोड, ठीक है। हम वहाँ पे पॉइंट करेंगे और उसको बताएंगे या उसको हम कनेक्टिविटी करेंगे डायरेक्टली टू दी पर्टिकुलर उस नोड के चाइल्ड के साथ। मतलब कैसे होता है कि 30 को अगर मुझे डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? 30 को डिलीट करना है तो 30 का जो पेरेंट है 10, ठीक है, उसका कनेक्शन हम क्रिएट कर देंगे 60 के साथ। क्योंकि देखो अगर पेरेंट नोड 30 अगर डिलीट हो जाता है तो 60 का कनेक्टिविटी कैसे होगा? तो इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले पेरेंट नोड को हमें कंसिडर करना है, पेरेंट नोड के ऊपर पॉइंटर को सेट करना है, ठीक है। सेट द पॉइंटर फील्ड ऑफ द पेरेंट नोड ऑफ एन, मतलब पेरेंट नोड 30, एन यानी 30 का पेरेंट नोड कौन है? 10 है। उसको हमें पॉइंटर को फील्ड को सेट करना है टू द ओनली चाइल्ड नोड ऑफ एन, जो किसको पॉइंट करे? पेरेंट को पॉइंट ना करते हुए अभी किसको पॉइंट करे? उसके चाइल्ड को, यानी 60 को पॉइंट ना करते हुए वो 60 का जो भी चाइल्ड रहेगा, दैट इज पेरेंट को पॉइंट ना करते हुए यानी 30 को पॉइंट ना करते हुए वो 30 के चाइल्ड जो रहेगा उसको पॉइंट करे, ठीक है। इस तरह से हम उसको सेट करते हैं। सो दैट्स वाई क्या होगा कि 30 का जो पेरेंट है 10, वो किसको पॉइंट करेगा? 60 को पॉइंट करेगा, क्योंकि मुझे 30 नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो जैसे ही वो 30 से अपना डायरेक्शन निकाल के 60 को पॉइंट करता है तो इमीडिएटली 30 नोड डिलीट हो जाता है, ठीक है। यानी हमने एक पहला केस देखा था जिसमें बताया था कि अगर किसी नोड को चाइल्ड नहीं है और उस नोड को मुझे डिलीट करना है तो हम उसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। पॉइंटर
जो है पेरेंट टू चाइल्ड पॉइंटर जो रहेगा वो पेरेंट नोड के ऊपर सेट कर देंगे और उसको बता दिया जाएगा कि आपको ये नोड को अभी इसकी कनेक्टिविटी को हमें टर्मिनेट करना है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर वो नोड को डिलीट करना है, सिंपल। बट अगर किसी नोड को मुझे डिलीट करना है और उसका चाइल्ड है, देन व्हाट वी डू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी नोड को मुझे डिलीट करना है उसका जो पेरेंट रहेगा उसको हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा, सेट द पॉइंटर फील्ड ऑफ द पेरेंट नोड ऑफ एंड टू पॉइंट टू द चाइल्ड नोड। हमें ऐसा पॉइंटर सेट करना पड़ेगा कि वो जो पेरेंट नोड है, जैसे 10 है, वो किसको पॉइंट करे, 60 को पॉइंट करे, ना कि 30 को पॉइंट करे। जैसे ही वो 60 को पॉइंट करेगा तो हम इमीडिएटली 30 को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमारा एक नोड को डिलीट करने के टाइम हमारे बाकी नोड का कोई वेस्टेज नहीं होने वाला, कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये सेकेंड केस है। देन थर्ड केस क्या होता है, इफ़ द नोड टू बी डिलीटेड एंड हैज़ 2 चिल्ड्रन। अभी हमने देखा था कि जिस नोड को मुझे डिलीट करना था 30 को, उसका एक ही चाइल्ड था 60। अब मुझे ऐसी एक नोड को डिलीट करना है जिसके 2 चाइल्ड है, ठीक है। सो एंड हैज़ 2 चिल्ड्रन, देन सिंपली इन ऑर्डर सक्सेसर will take delete node position, then simply in order successor will take the delete node position। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 50 को डिलीट करना है, ठीक है, बट 50 के तो 2 चिल्ड्रन से, अब क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सक्सेसर रहेगा, इन ऑर्डर सक्सेसर विल डिलीट नोड पोजीशन। तो जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसका जो सक्सेसर नोड रहेगा, सक्सेसर नोड यानी राइट चाइल्ड, सक्सेसर नोड यानी राइट चाइल्ड जो उससे ग्रेटर है, वो क्या करेगा, डिलीट नोड की पोजीशन को कंसिडर करेगा, डिलीट नोड की पोजीशन पे आ जाएगा सिंपली, ठीक है। क्योंकि देखो 50 के 2 चाइल्ड है, 60 भी है और 80 भी है, ठीक है। तो अगर आप 50 को डिलीट कर देते तो उसका कनेक्टिविटी 60 और 80 का क्या होगा, क्या वो भी डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी वो डिलीट। उसका रूल क्या है कि जब भी आपको ऐसे किसी नोड को डिलीट करना है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर जो भी पेरेंट नोड मुझे डिलीट करना है, 50 को डिलीट करना है, तो उसका जो सक्सेसर रहेगा, इन ऑर्डर सक्सेसर विल टेक द पोजीशन ऑफ द डिलीट नोड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 80 जो रहेगा वो क्या ले करेगा, 50 की पोजीशन ले लेगा, यानी 50 को डिलीट हो जाने के बाद 50 की जो प्लेस है वहाँ पे वो 80 पॉइंट करेगा या 80 वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपली, ठीक है। सो डिलीशन के हमने 3 केसेस देखे हैं। एक होता है टर्मिनल नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो टर्मिनल नोड को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली उस नोड को डिलीट कर देते हैं क्योंकि उसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, ठीक है। सिंपली हम टर्मिनल नोड को डिलीट कर देते हैं। हमारा पॉइंटर किसको सेट करता है, उस नोड के पेरेंट को, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि if the node to be deleted n is a leaf node, simply make the pointer field of the parent node of n to null। यानी वो जो जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसका पेरेंट नोड के फील्ड में हम क्या लिख देंगे, नल। क्यों नल लिखेंगे, क्योंकि उसका जो चाइल्ड था उसको मुझे डिलीट करना है और उसके चाइल्ड को कोई भी अनदर चिल्ड्रन नहीं है, ओके। सो दैट्स वाई सिंपल। उसके बाद देखा था केस 2। केस 2 में क्या होता है कि अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है बट उसको एक चाइल्ड है, ओके, आइदर लेफ्ट चाइल्ड हो या राइट चाइल्ड हो, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, उसके डिलीट करने का मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर उस नोड को मुझे डिलीट करना है जिसका ऑलरेडी एक चाइल्ड है, तो पॉइंटर हम कहाँ पे सेट कर देंगे, पेरेंट नोड को यानी जैसे मैंने बताया था 30 को अगर मुझे डिलीट करना है, 30 का पेरेंट कौन है, 10 है, तो हम पॉइंटर कहाँ पे सेट करेंगे, 10 के ऊपर, ठीक है। सेट पॉइंटर फील्ड टू द पेरेंट नोड ऑफ एंड टू पॉइंट टू द चाइल्ड नोड, ठीक है। और पॉइंटर वहाँ पे सेट करने के बाद उसका जो, जैसे मैंने डबली लिंक लिस्ट में या सिंगल लिंक लिस्ट में भी बताया था, अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं कि उसका जो पॉइंटर फील्ड होता है, एड्रेस फील्ड होता है, उसको हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक यूज़ होगा। तो क्या करेंगे कि 10 का जो लिंक है, जो भी पॉइंटर है, वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, 60 को पॉइंट करेगा डायरेक्टली। तो दैट्स वाई हम 30 को यहाँ पे हम डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है केस 3। केस 3 में क्या बताया है कि अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, ओके, जैसे मुझे 50 को डिलीट करना है जिसके 2 चिल्ड्रन है 60 और 80, तो क्या होगा, उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, जिस भी नोड को आपको डिलीट करना है, ठीक है। अब 2 चिल्ड्रन है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट है और राइट चिल्ड्रन है, लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन। तो हमें क्या करना है, राइट चिल्ड्रन को कंसिडर करना है और क्या करना है, अब मुझे अगर 50 को डिलीट करना है तो उसके प्लेस पे मुझे 80 को सिंपली वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो हियर सिंपली रिप्लेस द सक्सेसर नोड ऑफ द पर्टिकुलर डिलीट नोड पोजीशन, ठीक है। डिलीटेड नोड की पोजीशन पे हम क्या करेंगे, सिंपली सक्सेसर नोड को
इंसर्ट कर देंगे, वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे. सो दिस इज द 3 केसेस ऑफ हाउ टू डिलीट अ पर्टिकुलर नोड. ठीक है, तो हम जब भी यहाँ पे किसी भी नोड को डिलीट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे कोई नोड पे नहीं पड़ रहा है, या उसके कारण कोई दूसरा नोड डिलीट नहीं हो रहा है. जिसको मुझे डिलीट करना है बस वही नोड यहाँ पे डिलीट होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द ट्रैवर्सल ऑपरेशन ऑन बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, so all the traversal operations are applicable in the binary search tree like in order, pre order और post order. ट्रैवर्सल का मीनिंग क्या होता है? विजिटिंग करना. अगर मुझे सारे नोड को या पर्टिकुलर किसी एक नोड को विजिट करना है तो ये ऑपरेशन भी हम बाइनरी सर्च ट्री में परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, ट्रैवर्सल ऑपरेशन आल्सो परफॉर्म इन द बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें 3 टाइप्स के हम ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. एक होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, दूसरा होता है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर. ठीक है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर जो हमने लिंक लिस्ट में देखा था. उसी तरह से हम यहाँ पे हर एक नोड को अगर मुझे विजिट करना है या पर्टिकुलर किसी नोड को विजिट करना है तो वो भी हम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द सर्चिंग इन अ बाइनरी सर्च ट्री. अब ये तो विजिटिंग हो गया. ट्रैवर्सल इज नथिंग बट ए विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड. अगर मुझे सर्च करना है किसी पर्टिकुलर एक नोड को, ठीक है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक नोड को सर्च करना है तो दैट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आल्सो परफॉर्म इन द बाइनरी सर्च ट्री. सो दिस ऑपरेशन सर्चेस अ पर्टिकुलर नोड. ठीक है, ट्रैवर्सर ही विल विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड, सर्चिंग द पर्टिकुलर वन नोड. ओके, सो ऑपरेशन सर्चेस अ पर्टिकुलर नोड इन BST. सर्चिंग फॉर अ डेटा इन अ बाइनरी सर्च ट्री इज मच फास्टर दैन इन अरे और लिंक लिस्ट. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग करना इट्स अ वेरी फास्टर एज कम्पेयर टू एरे और लिंक लिस्ट. ठीक है, एरे और लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में बाइनरी सर्च ट्री में हम फास्टर क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को, पर्टिकुलर डेटा को सर्च कर सकते हैं. ओके, सो दिस आर द ऑपरेशंस दैट परफॉर्म इन द बाइनरी सर्च ट्री. ओके, देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री? सो सॉर्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ डेटा. हम इजीली सॉर्टिंग कर सकते हैं. अगर हमारे पास बहुत सारा बंच ऑफ डेटा है, सेट ऑफ डेटा है, तो उसको हम इजीली सॉर्टिंग कर सकते हैं क्योंकि हायरार्चिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, और एज वेल एज हम इसको रूट नोड, एक हमारे पास रूट नोड होता है, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री. सो यहाँ पे हमें सॉर्टिंग करना ईजी होता है. ओके, तो BST का यूज़ कहाँ पे होता है? इसकी यूज़ फॉर सॉर्टिंग द डेटा. अगर मुझे डेटा को, सेट ऑफ डेटा को सॉर्टिंग करना है तो उसके लिए हम BST का यूज़ कर सकते हैं. और कहाँ पे यूज़ हो सकता है? एप्लीकेशन क्या है बाइनरी सर्च ट्री का? रिमूविंग द रिडंडेंसी फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डेटा. अगर डुप्लीकेशन से डेटा में, अगर नंबर ऑफ डुप्लीकेशन से डेटा में, तो उसको भी हम रिमूविंग कर सकते हैं. तो रिडंडेंसी ऑफ डेटा को रिमूव करने के लिए भी हम BST का यूज़ करते हैं. एज वेल एज सर्चिंग फॉर ए एलिमेंट. अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सर्च करना है तो उसके लिए भी हम BST का यूज़ करते हैं. सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो फॉर दैट ऑल्सो वी यूज़ द BST, that is binary search tree. So this is about the information about the binary search tree, how to perform insertion, deletion, traversing, searching. Okay, so I hope you understand this video. Thank you.